ہوتا ہے تو ٹھیک، نہیں ہوتا ہے تو ہم کینڈیڈیٹ اتاریں گے اور ہو سکتا ہے میں خود بھی آ جاؤں۔ 2002 میں PDP کی سرکار آئی، یہاں پر خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ ہونا چاہیے کہ سجاد صاحب غنی لون صاحب کے بیٹے ہیں، غنی لون صاحب یہاں پر MLA تھے، انہوں نے پارٹی بنائی، اس کے بعد اس کے بیٹے نے ٹیک اوور کی۔ اسی طرح عمران صاحب کے جو والد تھے مولوی افتخار حسین انصاری صاحب، وہ منسٹر تھے، اس کے بعد انصاری صاحب آگے۔ تو مہربانی کر کے یہ ان سے کہہ دیں کہ یہ چیپٹر کلوز کریں۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید، خیر مقدم ہے آپ کو اس خصوصی نشریات میں۔ ویورز کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے PDP کے ترجمان محمد رفیق راتھر صاحب۔ راتھر صاحب، سب سے پہلے وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی شکریہ، نوازش۔ راتھر صاحب، ہمیں بتائیے، جب سے PDP اور BJP کے بیچ میں الائنس بریک ہوا تھا اور اس کے بعد آج تک کشمیر میں الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ سب سے پہلے اس کو؟ دیکھیے، بڑا افسوس کا مقام ہے کہ پچھلے 9 سال سے یہاں پر الیکشن نہیں ہوئے، اور چونکہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور آج کی اقتدار میں جو پارٹی ہے اور وہ اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور حق بھی جانب بھی ہے، لیکن صرف ایک ریاست کے لوگوں کو، ایک ریاست کے عوام کو جمہوریت کے نظام سے یہ آپ ان کو ڈینائی کر رہے ہیں، ڈیموکریٹک رائٹس اور جمہوری نظام اور جمہوریت کے جو فائدے ہیں ان سے محروم رکھا جا رہا ہے ایک مخصوص پاپولیشن کو، ایک طبقہ کو، میں اگر کہوں گا تو زیادہ جائز ہوگا۔ تو سراسر ناانصافی ہے، اور اس طرح کا ماحول ہم نے کبھی آج تک نہیں دیکھا، اور مجھے نہیں پتہ BJP کی کیا تحفظات ہیں، وہ الیکشن یہاں پر کیوں نہیں کراتے، لیکن جنرل جو فیلنگ ہے جموں کشمیر کے عوام میں وہ یہ ہے کہ چونکہ BJP کا گراف یہاں تو پہلے تھا ہی نہیں، کشمیر میں تو ان کا نام ہے نہیں، جموں میں جہاں بھی تھا ان کا گراف بڑا ڈاؤن ہوا ہے، جو اینٹی پیپل پالیسیز ان نے کی اور جس طرح سے لوگوں کو انہیں تنگ کیا ہے، طلب کیا ہے، تو وہاں بھی گراف ان کا ڈاؤن ہوا۔ تو انہی خطرات کو محسوس کرتے ہوئے عام رائے یہ ہے کہ BJP یہاں پر الیکشن نہیں کروانا چاہتی۔ لیکن اب چونکہ پارلیمنٹ کے الیکشن آنے والے ہیں اور وہ ایک جمہوری وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے اور سارے ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہاں بھی پارلیمنٹ کے الیکشن ہوں گے اور جلدی ہوں گے، اور ہمیں امید ہے کہ اسی کے ساتھ اگر یہاں پر اسمبلی کے الیکشن بھی ہوتے تو زیادہ بہتر رہتا۔ آپ نے پارلیمنٹ الیکشن کی بات کی، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پیپلز کانفرنس جو ہے سجاد غنی لون کو میدان میں اتارے گی، نیشنل کانفرنس کی طرف سے عمر صاحب میدان میں ہوں گے، PDP کی طرف سے ابھی یہ پتہ نہیں چلا کہ کون سا کینڈیڈیٹ PDP جو ہے نارتھ میں اتارے گی، کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوں، میں خود لڑوں گا؟ جی جی ایکچولی یہاں پر ہم نے ابھی کینڈیڈیٹ نہیں کیا ہے نارتھ میں، کہیں پر بھی نہیں کیا، اور کسی پارٹی نے بھی کیا، یا PhD کے نام پہ آپ الیکشن لڑو گے؟ نہیں، دیکھیے PhD کا جو ہے وہ ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے۔ PhD بنی ہے اسی لیے کہ وہ لوگوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کریں، اور ابھی تک وہ یونائٹڈ ہے اور آگے بھی انشاءاللہ یونائٹڈ رہے گی۔ اور PhD کا مقصد بھی بار بار میڈم نے کہا ہے کہ الیکٹورل الائنس سے علاوہ بھی اس کے مقاصد ہیں، وہ مقاصد یہ ہیں کہ جس طرح سے لوگوں کی عزت و احترام کو یہاں پر پامال کیا گیا، جس طرح سے جمہوری حقوق کو پامال کیا گیا، جس طرح سے جمہوریت کو روندا گیا، اور جس طرح سے دونس دباؤ کی پالیسی کو اختیار کیا گیا، تو اس سب کو انڈو کرنے کے لیے PhD وجود میں آئی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب الیکشن بھی آپ اگر اس کے ساتھ جوڑیں تو ایسا ہے کہ یہاں پر چونکہ انڈیا الائنس بھی اب وجود میں آئی اور ہم اس کا حصہ ہیں، نیشنل کانفرنس بھی اس کا حصہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اتحاد کے مواقع ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ PhD آگے اتحاد میں آئے گی اور نیشنل کانفرنس اور PD اتحاد میں جائے گی۔ اگر نہیں بھی گئی تو اس کے بعد بھی ہمارا کینڈیڈیٹ ظاہر سی بات ہے ہوگا۔ ابھی یہ تو ہوائیں ہیں نا، کون ابھی آ رہا ہے، ابھی کوئی پکچر کلیئر نہیں، اور مجھے نہیں لگتا ہے کسی تنظیم نے ابھی کینڈیڈیٹس کو ظاہر کیا ہے۔ تو جب وہ موقع آئے گا آپ دیکھیں گے، PhD ہوتا ہے تو ٹھیک، نہیں ہوتا ہے تو ہم کینڈیڈیٹ اتاریں گے، اور ہو سکتا ہے میں خود بھی آ جاؤں۔ شکریہ۔ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ PDP کی طرف سے محمد رفیق راتھر جو ہے پارلیمنٹ الیکشن نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ اگر پارٹی، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا اگر پارٹی مجھے حکم کرتی ہے کہ آپ کو لڑنا ہے تو میں تیار ہوں۔ جب بھی بات الیکشن کی ہوتی ہے تو لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ جب بھی PDP آؤٹ آف گورنمنٹ ہوتی ہے تو لوگوں کی بات کرتی ہے، لیکن جب گورنمنٹ میں آتی ہے تو لوگوں کی بات نہیں کرتے۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے سرکار میں آ کر، پاور میں آ کر لوگوں کی بات کی۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جب 2002 میں PDP کی سرکار آئی، یہاں پر خوشحالی کا دور شروع ہوا، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن میں آپ کو بڑی وثوق سے کہوں گا، اور اگر آپ جموں کشمیر کے کسی شخص سے بھی پوچھیں گے، عام فام آدمی سے بات کریں، وہ آپ کو
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उस रूल की खूबियां बयान करेगा जो 2002 में मुफ्ती साहब ने सरकार बनाई। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आपका पोटा, आपका टाडा, आपका टास्क फोर्स, आपका और जिस तरह से आपके क्रैक डाउन हुआ करते थे, जिस तरह से आपको सड़कों पर मीलों किलोमीटर चलाया जाता था पैदल और तजलील की जाती है बुज़ुर्गों की, छोटों की, बड़ों की, आए रोज़ आपके घरों में छापे, क्रैक डाउन वगैरह, उस सब का खात्मा हुआ। यह आपको तस्लीम करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो एक्सटर्नल डायमेंशन है कश्मीर इशू का, उसको एड्रेस करने की कोशिश की। आपका मुजफ्फराबाद रोड खोला, आपका पुंछ और रावलाकोट का रोड खोला, बस सर्विस शुरू हुई, आना जाना हुआ और चारों तरफ से खुशहाली का दौर शुरू हुआ। यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आज 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप मुझे बताइए मुफ्ती साहब के बाद किसने यूनिवर्सिटी बनाई? माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी मुफ्ती साहब ने बनाई, इस्लामिक यूनिवर्सिटी मुफ्ती साहब ने बनाई। तो अच्छा, मेडिकल कॉलेज भी PhD इसकी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की देन है। तो यह कहना है कि वो लोगों की बात नहीं करते। अब इससे अलावा आप क्या कर सकते हैं? लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जब दूसरा दौर आया, जब मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ बदकिस्मती से, उसके बाद जब मोहब्बत जी आ गई तो हमने एजेंडा ऑफ अलायंस पर काम शुरू किया था बीजेपी के साथ। और जो उनके साथ इत्तेहाद हुआ, आपको याद रखना चाहिए, वो कोई बीजेपी ने हमारे साथ इत्तेहाद नहीं किया। हमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर उनको करवाया। वो चाहते थे इत्तेहाद, लेकिन हमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर उनको इत्तेहाद करवाया। फिर अगर उनने तोड़ा, वो टर्म्स और कंडीशंस उन्होंने मुंह मोड़ा और उनने डिनाई किया उन सारी शर्त शुरूत को, सरकार टूटी, तो उसमें आप PhD को, PDP को आप उसमें जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। लेकिन एक बात मैं बड़े वसूख से फिर आपके सवाल की तरफ आऊँगा कि मुझे नहीं लगता है कि आज तक, अगर आप हिस्ट्री के अवराक को उठाकर देखें, 47 से आज तक शायद ही ऐसी हुकूमत आज तक किसी ने यहाँ पर डिलीवर किया हो, किसी हुकूमत ने, जो जिस तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने डिलीवर किया और लोगों की तर्जुमानी की, लोगों की खुशहाली के लिए काम किया और मजमूई रियासत जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए काम किया। बात ज़रा बिजली की करेंगे। उमूमन जब भी मौसम सरमा शुरू होता है तो उमूमन कश्मीर के अवाम को जो है अनशेड्यूल पावर कट्स देखने को मिलते हैं। कुछ दिनों पहले की बात है कि एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई कि गवर्नमेंट जो है इजाफी बिजली खरीदने जा रही है, यानी कि 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खरीदने जा रही है। और PDP ने भी महकमा बिजली के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था कि अनशेड्यूल कट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जब PDP हुकूमत में थी उस वक्त PDP ने ये क्यों नहीं सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस जम्मू कश्मीर में होती है वो फिल करनी चाहिए? देखिए, आपको पता है कि पहले 3 साल जो मुफ्ती साहब का दौर था, 3 साल उनको मिले और मोहब्बत जी ने कुछ 1-2 साल उनकी सरकार थी। और आपको पता है उसमें 2016 भी हो गया, फिर 15 का भी हालात कैसे रहे। तो उस दौरान में कोई इस तरह का प्रोजेक्ट हाथ में लेना मेरे ख्याल में पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन जो आज की क्राइसिस है, देखिए, सरकार को कोई ये नई बात नहीं है यहाँ पर क्राइसिस है। सरकार को मालूम होना चाहिए कि यहाँ हारिश विंटर्स होते हैं। हारिश विंटर्स के लिए जो पहले सरकारें थी वो सब बंदी करते थे, वो पहले ही इसके लिए अरेंजमेंट इंतजाम करते थे। लेकिन आज की सरकार चूँकि अवामी सरकार है नहीं और कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, अफसरों की सरकार है, गवर्नर साहब की सरकार है, उनको पता है कि हमें लोगों के पास कोई जवाबदेही हमारी है नहीं, तो वो आनाकानी करते हैं बिजली लेने में। जो इजाफी बिजली यहाँ पर दरकार है उसको ख़रीदने में आज तक उन्होंने आनाकानी की। तो अगर वो आज 400 या 500 मेगावाट लेते हैं तो ये कौन सा एहसान वो कौम पर करें। आप देखिए किस तरह के लोगों को यहाँ पर तंग किया जाता है। आप देखिए आपके ये मीटर्स हैं लगे, क्या जिस तरह से आपके मीटर्स हैं, क्या आपको बिजली फराहम की जाती है? जितना आप फीस लेते हैं क्या आप उतनी ये बिजली फराहम करते हैं? तो दिन में 1 घंटे, 2 घंटे, 3 या 4 घंटे इस सर्दी के अयाम में बच्चों की पढ़ाई का मामला है, बुज़ुर्गों की सेहत का इशू है और सर्दी है, आम सी बात है ये। तो इस वक्त भी अगर सरकार आपको बिजली फराहम नहीं करेगी तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार है। वैसे भी इसको सरकार हम नहीं कह सकते, ये एक अरेंजमेंट है और गवर्नमेंट और बीजेपी का एक अरेंजमेंट है यहाँ पर। और मैं ये समझता हूँ हर सरकार जो होती है वो लोगों की वेलफेयर के लिए होती है, लोगों की सहूलियत के लिए वो काम करती है। लेकिन ये सरकार पहली बार हमने ये डिस्पेंसेशन, सरकार तो मैं इसको नहीं कहता, डिस्पेंसेशन कहता हूँ इसको, ये डिस्पेंसेशन लोगों को तंग तलब करने के लिए। और यही वजह है कि कभी एक नुक्ता कभी दूसरा नुक्ता और आज बिजली की इस पर हमें तड़पाया जाता है और ये सरासर नाइंसाफ़ी है लोगों के साथ। और फिर मैं कहूँगा कि अगर यहाँ पर अवामी सरकार होती तो इस तरह की क्राइसिस आप नहीं देखते। अगर हम बात पीपल्स कॉन्फ्रेंस की करेंगे, वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि ख़ानदानी राज फिर से कश्मीर में आए। पहले शेख साहब, उसके बाद उमर साहब, फारूक अब्दुल्ला और उसके बाद उमर साहब।
वैसे ही पीडीपी में चलता आ रहा है कि पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसके बाद जो है महबूबा मुफ्ती, और आज इल्तिजा मुफ्ती के बिना पीडीपी में कोई नहीं था। देखिए, आपको ये समझना होगा, जब महबूबा जी बंद थी और हमारी सारी लीडरशिप ऑलमोस्ट बंद थी, तो इल्तिजा जी ने इस पार्टी को चलाया। और आपको पूरा मालूम होना चाहिए, उनकी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए कि किस तरह की काविशें उन्होंने की। दिल्ली में प्रोटेस्ट, श्रीनगर में, और बयान सिर्फ उनकी तरफ से आता था, और जिस तरह का रोल इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में इल्तिजा जी का जो रोल रहा, शायद ही किसी बड़े लीडर का या छोटे लीडर का आपने देखा होगा। तो जब उनको हमने मीडिया एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट लिया है, तो पहले बात ये कि मेरिट पर हुआ है, कोई एहसान उन पर नहीं है कि वो एक्स मुफ्ती, एक्स चीफ मिनिस्टर की बेटी है और उसकी बुनियाद पर उनको कोई गिफ्ट मिला है, ऐसा नहीं है। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा काम मुश्किल तरीन हालात में अगर पीडीपी में किसी ने किया तो वो इल्तिजा जी ने किया है, नंबर एक। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि परिवारवाद, अब मुझे नहीं पता कि आप किस लीडर ने ये बयान दिए है। आपको मालूम होना चाहिए कि सज्जाद साहब गनी लोन साहब के बेटे हैं। गनी लोन साहब यहाँ पर एमएलए थे, उनने पार्टी बनाई, उसके बाद उसके बेटे ने टेक ओवर की। इसी तरह इमरान साहब के जो वालिद थे मौलवी इफ्तिखार हुसैन अंसारी साहब, वो मिनिस्टर थे, उसके बाद अंसारी साहब आ गए। तो मेहरबानी करके ये उनसे कह दें कि ये चैप्टर क्लोज करें। जब इस बात पर आप ये बात उबारने की कोशिश करेंगे तो पहले आप अपनी पार्टी को देखें और अपने पार्टी में देखें कितने लोग ऐसे हैं जो परिवारवाद को चला रहे हैं। तो ये कहने वाली बात है। हाँ, मैं इस बात का कायल हूँ कि अगर मेरिट पर किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो, पीडीपी में हो, कांग्रेस, मेरिट पर अगर कोई नौजवान सामने आता है और काम करना चाहता है तो उसको जगह मिलनी चाहिए, और उसको जितना वो करता है उस कैपेसिटी के हिसाब से उसको एजाज़ मिलना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं है, दूसरी बात नहीं। रफीक साहब, आप ज़रा आपके सियासी सफ़र से पहले की बात करेंगे। आप मुलाजिम तर्जमान थे, यानी कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन आप थे, और उसके बाद आपने अचानक से इस्तीफ़ा दिया और पीडीपी में आपने शमूलियत इख्तियार की। आपको क्या लगा पीडीपी में? यहाँ हालांकि क्या हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ नई पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे थी, जैसे कि अपनी पार्टी थी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी, या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, या कांग्रेस है। इन पार्टी को आपने क्यों नहीं चूज़ किया? आपने पीडीपी को ही क्यों चूज़ किया? शायद इस सवाल का जवाब मैंने आपका जो बेसिक पहला सवाल जो था उसमें मैंने दिया। मैंने आपसे कहा कि मुफ्ती साहब ने जब टेक ओवर किया, पहली बात देखिए कि उनका विजन क्या था। 97 या 98 में पार्टी, 99 में पार्टी बनी पीडीपी, सिर्फ 2 साल में, 3 साल में, 2002 में वो इक़्तिदार में आ गए। अब देखिए कितना बड़ा विजन था, और उन्होंने पॉलिटिकल अल्टरनेट उस वक्त दिया जिस वक्त आप तस्वर भी नहीं करते थे। कई कोशिशें हुई, इससे पहले भी कई कोशिशें हुई। 87 में एक अल्टरनेट आया था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की, तब आप शायद पैदा भी नहीं हुए थे। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के रूप में एक यहाँ पर एक अल्टरनेट आया था, और आपने देखा कि उसको किस तरह से डिसमेंटल किया गया। वो एक भी सीट उन्होंने नहीं ली। तो लेकिन जो मुफ्ती साहब का जो पॉलिटिकल वो विजन और पॉलिटिकल विजडम था, तो 99 में पार्टी बनी और 2002 में वो सरकार में आ गए। सिर्फ 3 साल में, मेरे ख्याल में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। तो नंबर एक। दूसरा, मैंने जो आपसे कहा कि मुफ्ती साहब के दौर में जो खुशहाली यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों को जो खुशहाली उनने देखी, और जिस तरह से यहाँ पर सहूलियात फराहम की गई, और जिस तरह से लोगों को आराम मिला, लॉ एंड ऑर्डर की उसमें कंटेक्स्ट में बात करता हूँ, तो एक तो मुझे बड़ा इंस्पायर हुआ था उनकी वो लीडरशिप। और दूसरा उस वक्त रफीक साहब ने क्यों नहीं पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की? नहीं, अभी मैं सर्विस करता था, अभी मैं छोटा था, अभी मेरे बहुत सारी सर्विस थी। तो उसके बाद मुफ्ती साहब के बाद जब महबूबा जी आ गई, तो लेकिन फिर से हमें सरकार ये बनाने का मौका मिला। लेकिन महबूबा जी को मैं ये क्रेडिट देता हूँ, जिस जवानमर्दी से और जिस हौसले से और जिस विजडम से, पॉलिटिकल विजडम से उन्होंने ऑन स्लॉट को फेस किया। और बीजेपी के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज़ यहाँ पर रही है, बिलखुसूस पोस्ट 2019, 5 अगस्त 2019, और जिस तरह से हौसले से और जिस हिम्मत से उन्होंने यहाँ पर उसको फेस किया है, उन चैलेंजेस को फेस किया, उसकी मिसाल आपको जम्मू कश्मीर की सियासत में नहीं मिलेगी। एक शख्स खड़ी थी जिनने चैलेंज किया, और जिन्होंने लोगों के जज्बात की, लोगों की एहसास की, और लोगों के साथ जो इस्तेसाल हुआ, उनकी इज़्ज़त व आबरू के साथ जिस तरह का इस्तेसाल हुआ, उसको चैलेंज किया, और बार बार कहा कि हम ये एंटी पीपल पॉलिसीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे। तो मैंने मुनासिब समझा, चूँकि मेरा एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने समझा कि अगर मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन, मैडम की इस कंट्रीब्यूशन में अपना छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन डालूँ, तो जाहिर सी बात है, जहन में यह था कि
लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सबसे बेहतर वायबल अल्टरनेटिव है यहाँ के यूथ के लिए और उन लोगों के लिए जो कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीरियत की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम की बात करते हैं। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नवाजिश। ये थे हमारे साथ पीडीपी के तर्जमान मोहम्मद रफ़ीक राहतर जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को ये बातें बहुत पसंद आएंगी। आप बने रहिए इस खुशी नज़रियात के साथ। कैमरामैन तौफीक के साथ ज़ीशान कादिर, बारामूला।